Hi everyone, good evening all of you, and this is Sana, academic specialist in science and chemistry department in Byju's. So everyone, in this what we are going to discuss today basically about my 9 months journey of Byju's. So मुझे 9 months हो चुके हैं. I have joined on 16th July 2021. So after trying for 2 years, and I have waited for 2 years opportunity. Before this, I was in an academy, and I was of course craving for Byju's for 2 years, and I was like looking for the single opportunity everywhere on LinkedIn. Nobody was there. There was no direct contact. So this was difficult for waiting for something, although I was a very overthinking person. ऐसा था कि job मिलेगी नहीं मिलेगी. I was asking every person who was indulged in Byju's, right? कोई भी था, मतलब I was asking, क्योंकि every designation was not looking like पता नहीं Byju's के लिए क्योंकि Unacademy में I have taken live sessions of science and maths as well. So मुझे लगता था कि Byju's में already tutors for the like already हैं, but I have heard कि वो hiring नहीं चल रही है for the live tutors. There is no live project, live classes का कोई project अभी नहीं है at present. So I was waiting and मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, live classes नहीं होंगी तो कैसे job मिलेगी, and मेरा dream भी था obviously. And if I talk about the money and salary basis, everyone, so before this I was in Unacademy. I told you I was having 800 rupees. Frankly, I'm speaking with you. So एक wish थी, I was craving, वो कितनी भी salary हो चलेगी, कोई problem ही नहीं है, but एक बार entry चाहिए Byju's के अंदर. सिर्फ I was stick to this point. I need a entry in Byju's as a tutor. So someone offered me कि BDA की पोस्ट कर लो, you'll get the entry and तब देख लेना, क्या पता ट्यूटर जॉब लग जाए और क्या. But I was thinking I have no marketing skills and कैसे चलेगा एक टीचर होते हुए. How can I convince a person कि आप हमारा प्रोडक्ट लें. So I was not having, मेरे पास नहीं है वो skills, right? So I was passionate about teaching and I am till now as well. I was stick to this point. मुझे सैलरी से मतलब नहीं है, मुझे Byju's में एंट्री चाहिए. सिंपल. मुझे अगर if I compare with at present my salary, so it is the 1/3 salary I am getting, and मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है इस चीज से. 1/3 salary from the previous one. So you can imagine I was having 1/3, at present I am having. So आप इमेजिन कर सकते हो. I have no मुझे कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने जो अचीव करना चाहती थी मेरे में आई एम काइंड ऑफ बहुत जिद्दी हूं मैं. आई एम अ स्टर्बन पर्सन. जिस चीज के पीछे मैं पड़ जाती हूँ तो उसको मैं इजीली छोड़ती नहीं हूँ, चाहे मुझे 2 साल वेट करना पड़े, चाहे मुझे आई वॉज प्रेइंग टू गॉड ऑल द टाइम कि मैं प्लीज करवा दो यार प्लीज, बिकॉज मैं इस चीज के लिए क्रेव कर रही थी ऑल द टाइम. इसी के बारे में ही सोचती रहती थी. नो मैटर व्हाट इज द सैलरी, व्हाट इज दैट, कोई ऐसी इस टाइप का नहीं था. सिर्फ एक बार मन में आया था व्हेन दे ऑफर्ड दैट योर पैकेज इज 4.75, एनी प्रॉब्लम. आई वॉज थिंकिंग मेरे को नेगोशिएट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहले इतनी सैलरी थी अभी इतनी मिलेगी, ओनली एट वंस. बट स्टिल आई वॉज नॉट हैविंग द गट्स कि मैं कैसे गट्स रखूं. अभी मेरी सिलेक्शन ही नहीं हुई है, इंटरव्यू हुआ है अभी तो कैसे पूछ लूं कि हाउ कैन आई नेगोशिएट इन फ्रंट ऑफ देम, राइट? मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था एट दैट मोमेंट. एंड इट वॉज आई रिमेम्बर 2nd July I got the interview mail, and and 2nd July, and there was an interview. No, 2nd July, before the 2nd July, I guess it was the ending of the June, 30th June or the 1st July, and the day before I got the mail for the interview in Byju's as a academic specialist. Before this academic specialist there was a name, learning and development specialist. So ये नेम काफी कंफ्यूजिंग लगेगा आप सभी को. फॉर एकेडमिक स्पेशलिस्ट इस डेजिग्नेशन का नेम लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट था.
So those who are old and experienced in BYJU'S, उन सभी का designation पहले यही था. So I was like, okay, interview है, मैंने prepare किया because I'm a chemistry tutor, so chemistry में अच्छा है, but somewhat I was having issue in biology and physics somewhat. So I prepared जितना हो सका एक दिन में topics. I got the topics as well. So at 3 p.m. I was sitting in front of the interviewer. I was like, बस मुझे ये क्रैक करना है, कुछ भी हो जाए. Be confidence is important skill, I must say, everyone. So they asked me that any kind of difficulty or problem issue if we are for offering 4.75. I said no. Okay, fine. In between I was having a part that क्या मैं इनको बोलूं कि कैन वी नेगोशिएट और लाइक दैट. सब्जी थोड़ी खरीद रहे हैं. इट्स अ BYJU'S, द वन ट्रू ड्रीम इन माई लाइफ. अगर अब मैंने ये नेगोशिएट किया, व्हाट विल बी द इम्प्रेशन, क्या इम्प्रेशन पड़ेगा. सो मेरे को लगा कि नहीं चुप करना चाहिए, चुप बाद में देखी जाएगी लेटर ऑन. सो आई लाइक इंटरव्यू क्वेश्चंस वर देयर. दे सेड दैट यू कैन स्टार्ट विद योर डेमो, विद योर टॉपिक. सो आई स्टार्टेड विद मेटल एंड नॉन मेटल. So the person was really kind and patient. He was very patient, having patience, and he asked me few questions, that acids, bases, and I remember few questions, but I not exactly that remember. But questions were, I was feeling थोड़े से tricky लग रहे हैं यार. कैसे जो मन में आया, जो भी मुझे लगा, the fact is required for the relation of the answer होना चाहिए. I gave that way. So if you don't know any kind of a answer, everyone, don't just be, keep quiet in that. Whatever the relation of the question suppose a numerical पूछ लिया, numerical में क्या formula लगेगा, कैसे solve करना है, कुछ भी express करना is very important. चुप बैठे रहेंगे तो वो तो zero ही हो जाएगा बिल्कुल भी. At least if you will express something, at least you have a hope, right? So better पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए. कॉन्सेप्ट थॉरली होना चाहिए. CBSE ICSE लेवल बोथ. मेरे को ये लगा कि हाँ, और प्रिपरेशन अच्छी होती तो बहुत अच्छा कर पाती. सो आई वॉज लाइक ओके, बट हो गया 15 से 20 मिनट के अंदर. दे सेड व्हाई वी हायर यू. आई वॉज थिंकिंग दैट सर, दिस इज अ ड्रीम जॉब फॉर मी एंड आई एम रियली कॉन्फिडेंट. I want to enhance my knowledge in BYJU'S. Whatever I had in an academy, I'll definitely improve, and definitely I'll work the hardest, jitna mujhse ho payega. So I expressed them and everything I said. So it's here. Finally, 9 months is there. I completed 9 months in 16th of April. And let's see what. Hope for the best in the next few days as well. And when I let me tell you, I got the call on the 9th July 2021 around 12. आप लोग सोच रहे होंगे इतनी मेमोरी क्लियर है मेरी. Yes, I was having यही exactly इसी जगह पे बैठी थी. I got a call without expectations. I told my parents that okay, हो गया इंटरव्यू. It was good. आंसर दिए मैंने, कुछ नहीं आ रहे थे आंसर्स. So बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत पॉजिटिवली मैंने रिस्पॉन्स दिया. एंड बहुत अच्छे से दैट इट्स माई ड्रीम, नथिंग एल्स मैटर, नो सैलरी मैटर फॉर मी. वेल, दिस इज माई ओपिनियन. हर किसी का अपना सोचने का तरीका है, बट मेरे लिए आज भी ये एक ड्रीम की तरह ही है. सो आई एम लिविंग माई ड्रीम. आई हैव नो कंप्लेंट्स. सी, एवरी सिस्टम, एवरी एडटेक कंपनी हैज सम प्लस एंड माइनस. एवरीवेयर यू विल फाइंड इट. ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम कहाँ नहीं होती है. एक घर में ही ले लीजिए, 5 मेंबर फैमिली, जॉइंट फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना. सो ये तो इतनी बड़ी कंपनी है. इमेजिनिंग 4000 ट्यूटर्स, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैंडल करना, इट्स नॉट एन ईजी. स्टिल वी आर ऑन number 1 एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू टू बी अ BYJU'S. एंड मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है मेरे काम से. I have promised on that day of interview that I'll work the hardest, and मैं कभी भी अपने काम के लिए डिनाई नहीं करूंगी. I promised that day, and still I am on that fact. I have never denied my work. कोई भी काम, very exceptional reasons are there.
वेल आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टिल नाउ एज वेल. मेरी जर्नी बहुत खूबसूरत रही है एंड इट्स अमेजिंग टिल नाउ एज वेल. एंड कभी ज्यादा सेशंस होते हैं, कभी कम होते हैं, सो इट्स वेरिएबल. इट इज नॉट फिक्स्ड एवरी डे. 5 सेशन भी मिले हैं, 6 सेशन भी मिले हैं, बैक टू बैक भी मिले हैं. आई हैव नो कंप्लेंट्स कि क्यों दिए, मेरे को पानी पीने का टाइम नहीं है, मेरे को खाना खाने का टाइम नहीं है. आई कैन मैनेज बिकॉज इट डिपेंड्स. योर फैमिली इज वेरी कोऑपरेटिव इफ लाइक, सो यू कैन मैनेज. अगर किसी काम को लेके, क्योंकि मैंने 2 साल वेट किया है तो मुझे इसका वैल्यू पता है. ये हाथ से चला गया तो मेरी क्या वेट करने का क्या फायदा. 2 साल मैंने वेट किया क्या. अगर ऐसे ही अगर वी शुड नॉट बी कंप्लेनिंग एवरी टाइम. चाहे 5 सेशन मिले हैं, दे सेड बिफोर द इंटरव्यू कि आपको इतने घंटे के अवेलेबल रह पाओगे. आई सेड यस. तब मैं ना बोल सकती थी ना. सो बहुत लोग आई हैव हर्ड, दे आर वेरी टेंस्ड, दे आर लाइक दे कैन नॉट मैनेज. बट आई विल से दैट मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू वाले दिन मैंने ये चीज बोली थी. क्यों बोली थी? कमिटमेंट किया था कि हाँ आई विल बी अवेलेबल विद ऑन वर्क, राइट. सो कभी एक्सक्यूजेज नहीं बनाए मैंने. जब भी मैंने हॉलीडे लिया, लीव लिया, दैट वाज अ जेन्युइन रीजन. ऑफ कोर्स जब भी आई एम लाइक ओके इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक अ लीव और राइट, सो मैंने लीव तभी ली है. आई एम गोइंग आउट और इट्स इम्पोर्टेंट टू गो आउट, राइट. सो एटलीस्ट the things which we can control, वो at least control में होना चाहिए. Like they have set the conditions, Wi-Fi should be as high a speed as you can, right? Manage करना पड़ेगा. So everything they have told me on the interview that ये manage करना पड़ेगा, manage कर लेंगे आप. So I committed them, right? After that, if I will say any complaint or any excuse, that will not look good and that is not a professional behavior, I believe, right? So whenever people, अगर आप कोई कमिटमेंट करते हैं किसी को भी, किसी चीज के लिए भी, तो एटलीस्ट बी लॉयल टू दैट एंड बी फर्म टू दैट, राइट. इमेजिन आई एम हैविंग 3 सेशंस टुडे. yesterday I was not having any session allotted, so still I was available for them. I won't deny. This is the reason, because I know the value of waiting 2 years. That's why I have no complaints regarding that, because I know मेरी family supportive है, खाना and all सब manage हो जाएगा. बाहर भी होती तो भी manage कर लेती. It's no problem with that. So it depends on person to person thinking. At least I can guide you for this कि कभी भी अगर हम कोई चीज commitment कर रहे हैं, किसी भी company के साथ कर रहे हैं, we should be loyal to that. That's why I know the value. मुझे मेरे काम से ज्यादा किसी चीज से प्यार नहीं है at present. Of course, मेरी फैमिली वो that is emotional connection, and after my work they also know मेरे काम मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी, right? तो no complaints, no demands, whatever they are offering salary, I'm okay 100% with okay. कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस चीज में. एक्स्ट्रा भी मिलता है, it's okay, I'm normal with that. I'm happy अगर मिलता है, appreciation मिलता है, that's happy. अगर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग एवरीवन, आई हैव मेरे से पूछा गया था, हर चीज कंसेंट मांगा गया था, दैट यू ओके विद 1.5 months ट्रेनिंग होगा आपका. आई वाज लाइक नो प्रॉब्लम, ट्रेन करोगे, एटलीस्ट यू विल गाइड मी, यू विल एनहांस माई नॉलेज. एंड आई एम 100%, नोबडी इज 100% एट प्रेजेंट, राइट. चाहे हम कहीं भी कॉलेज से पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आई एम फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, MCM DAV गर्ल्स कॉलेज. मैं समझती थी मैं परफेक्ट हूं, बट इफ यू आर थिंकिंग आप परफेक्ट हो तो आप नहीं आगे बढ़ सकते लाइफ में. इफ यू आई थिंक दैट ओके केमिस्ट्री इज फाइन, स्टिल आई हैव टू इम्प्रूव ICSE लेवल, क्योंकि आई एम फ्रॉम CBSE लेवल. आई हैव स्टार्टेड दैट ओके कंटेंट इज हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लेवल. सो मुझे लगा कि ओके इनका हाई लेवल है काफी ज्यादा, तो मुझे ICSE लेवल पे थोड़ा फोकस करना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट पे I have started the way I can improve to note down everything. Pace improve करना है. In the training they told me everything is perfect, your interaction is perfect. जो जो चीजें मुझे बोली गई improvement के लिए, I have noted the stuff. मुझे आज भी वो चीज पता है, एंड लिटरली अगर मैं ये चीज एक्सेप्ट कर रही हूँ कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो मैं इम्प्रूव कर पाई हूँ. अगर आप सोचेंगे एक एटीट्यूड और ईगो में बोलेंगे नहीं 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 हमें सब पता है, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, नो, देयर अ परफेक्ट पर्सन. अगर आप ये चीज सोच के चलेंगे, देन यू कैन इम्प्रूव इन योर लाइफ.
right? This is everyday learning process is going on. Still also, agar see, imagine 60 minutes ka session hai and they have said the ideal timing is 50 to 55 minutes, right? मैं starting में when I took the sessions, I was not able to cover the content. But when my trainers, mentors, my manager, he's the coolest buddy I have, and other people in Byju's at present now, they're connected virtually with me. They're helping me a lot how you can cover your timing within 50 to 50 minutes, 55 minutes. So it is helping me a lot every day. And it is important if you will allow, अगर आप अपने आप को अलाउ करोगे ना इस चीज को सोचने के लिए दैट इम्प्रूवमेंट चाहिए, तभी इम्प्रूवमेंट होगा. अगर आप सोचोगे तो नहीं सब आता है, दैट ओवर कॉन्फिडेंस विल लीड्स टू डाउन लेवल. आई बिलीव दैट. मैं भी ओवर कॉन्फिडेंट थी, बट माई फ्रेंड्स एंड एवरीवेयर दैट आई एम कनेक्टेड विद द पीपल, दे टोल्ड मी नो सना इम्प्रूवमेंट चाहिए, अभी ऐसे इम्प्रूवमेंट चाहिए टाइम मैनेजमेंट में. देन आई बिलीव आई एम गेटिंग एप्रिसिएशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव this time management and the other stuff like content level as well. Like whatever the Byju's is expecting that level of content, वो पहले prepare करना मेरी priority रहती है दिन में. How I'm preparing with that? Google पे content available है and the Byju's team has already make the available content for us every day. We have a everything list of the chapters, textbooks. मैंने खुद भी बुक्स ऑर्डर की हैं कि ओके टू स्पेंड लेस टाइम ऑन स्क्रीन, राइट? सो उस चीज के लिए एफर्ट इज इम्पोर्टेंट एंड आई नो मैं कैसे पढ़ सकती हूँ लिख के. विद रिटन प्रैक्टिस आई कैन स्टडी रियली वेल. ओरली आई कैन नॉट, भूल जाती हूँ बहुत जल्दी चीजें. सो आई एम वर्किंग ऑन द प्रोसेस दैट लाइक आईसीएसई लेवल इज बिट हार्ड फॉर मी, राइट? टाइम लगेगा पढ़ने में, तो मैं उस पर टाइम स्पेंड कर रही हूँ आजकल. केमिस्ट्री आईसीएसई 9th and 10th level. Soon I'll be on 11th and 12th level as well. कि अगर if some students any student ask me question के हाँ what is this, मेरे को ये फील नहीं होना चाहिए कि यार ये तो नहीं आता है, ये कैसे आंसर करना है. एटलीस्ट सो डेली आई एम वर्किंग ऑन दैट कि इम्प्रूवमेंट ऐसे आएगा कि अगर मैं सोचूं कि हाँ इम्प्रूवमेंट इज वेरी वेरी स्लोअर वे और आपको इम्प्रूव करना है तो ये स्टार्ट करना पड़ेगा. इन द डे टाइम आई फील इफ आई एम फ्री, राइट? सो आई फील कि कंटेंट पढ़ना इज गुड. तो रिटन प्रैक्टिस, मेकिंग शॉर्ट नोट्स, स्टडी द whatever the session I have today. So मुझे लगता है कि 9th and 10th लेवल में कितनी जरूरत है मुझे बोलने की, 4th और 5th ग्रेड में कितनी जरूरत है, उनको किस चीज की जरूरत है, वो चीज आई एम राइटिंग इन माई नोटबुक of every day, right? So if I want to show you something that I have a list of that like this with the timer, management strategy, start time at what, end time at what, whatever the stuff I have noted, what is the problem during the session, I have written everything in detail. If in case, क्योंकि हर चीज याद नहीं रहेगी किस दिन क्या हुआ था, I have a diary and a notebook separate with that. So keep a notebook and everything, write down everything साइड बाय साइड. हर सेशन के बाद फटाफट क्या प्रॉब्लम आया, क्या चीज प्रॉब्लम आ रही है, कंटेंट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, जो भी कंटेंट दे आर ऑफरिंग एवरी डे टू रिवाइज इट. सो वो चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एवरीवन, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बायजूस ने मुझे इतना ज्यादा लाइक इम्प्रूव किया है एंड आई वॉन्ट टू इम्प्रूव मोर. I am not in any kind of a hurrying for a promotions, expectations. मैंने अपने माइंड को पहले दिन से सेट किया था. yes, अगर होती है इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है. अगर हो रही है इट्स वेल गुड. ऑफर भी आया, ऐसा नहीं है ऑफर नहीं आया, बट दे स्टिल आई मेंशन्ड इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड इन द कंटेंट पार्ट. सो आई एम इम्प्रूविंग दैट वे कि कभी ना कहीं जो चीज होती है दैट आई बिलीव अच्छे के लिए होती है. सो थिंक पॉजिटिव, थिंक इन अ मोटिवेटेड वे. हम जब भी ये चीज सोचेंगे कि हमारे अंदर कमी है, देन ओनली वी कैन इम्प्रूव. अगर हम सोचेंगे ना नहीं 100 out of 100 है हम, तो हमारे से ऊपर कोई नहीं है, देन वी कैन नॉट इम्प्रूव इन लाइफ. कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते. मैं पहले ऐसा सोचती थी बायजूस से पहले, नहीं ऐसे कैसे, सब आता है ऐसे कैसे. बट नहीं, सब नहीं आता है. आई बिलीव बहुत कुछ रहता है जो अभी कवर करना है मुझे और इम्प्रूव करना है. दैट आई एम वर्किंग ऑन इट. एंड एवरीवन, आई बिलीव मेक अ हैबिट, वेक अर्ली इन द मॉर्निंग. 6 बजे उठने की जरूरत नहीं है. आई पर्सनली वेक अप 6:45 and 6:30. टच वुड. बहुत अच्छी रूटीन बनी हुई है. आई हैव अ
early breakfast at 8 a.m. or 8:30 a.m., 12:30 lunch, and dinner at 7:30. It depends on my classes as well. 7:30 around, or 8:30 or 8. So I'm improving the dinner timing as well, and it's good. Health is connected with your routine, and keeping a water bottle every time. ये बॉटल मेरे साथ 24 आवर्स रहती है. कहीं भी जाना है मुझे, कहीं पे भी किसी अलग रूम में भी जाना है, दैट आई एम कीपिंग दिस बॉटल विद मी, क्योंकि पानी is very very important. Because when I was in the depression phase, I have got acne face on my spots. Acne इतना ज्यादा हो गया था, सारा मेरा फेस भर गया था literally. And now you can observe the scars are left. I can see scars, somewhat spots are there, black spots are there, and I'm improving and working on this scars especially. So also one more important thing, I have a point. If anybody is facing a stress or any kind of a stress in life, whether it's a job related or any other issue, I got my doctor's advice that जब तक आप अपनी लाइफ में एंगेज नहीं है, अपने काम को लेकर बिजी नहीं रहेंगे, तो द ओनली ऑल्टरनेटिव वे फॉर द डॉक्टर इज इंक्रीजिंग द मेडिसिन. तो जब तक मेरे पास काम नहीं था, तो डॉक्टर्स मेरी मेडिसिन 50 mg कर तक बढ़ा रहे थे, क्योंकि स्ट्रेस लेवल कम नहीं हो रहा था. जैसे ही आई एम एंगेज्ड इन माई वर्क, बॉडी थक जाती है रात को 10 बजे तक, मेरी 11 बजे तक, आई एम लाइक नो टाइम फॉर थिंकिंग, नो टाइम फॉर ओवर थिंकिंग, नो टाइम टू थिंक. किसी के बारे में कुछ और सोचने का रह ही नहीं जाता है माइंड में. सो दैट इज ऑफकोर्स स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हो रहा है और मेडिसिन की mg डिक्रीज हो रही है. दैट इज इम्प्रूवमेंट इज गोइंग ऑन लाइक दैट वे. सो अगर आप लोग मेडिसिन पे हैं तो ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं. और जब तक आप बिजी नहीं है किसी भी चीज में, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हैं, मैं सिर्फ सेशंस में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, मैं हायरिंग टीम को भी हेल्प करती हूँ कि इस तरह से बिजी कंटेंट में अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ. वेब सीरीज देख ली अगर स्टिल मैं फ्री हूँ, मूवी देख लेती हूँ. दिन थक जाती हूँ, मूवी देख के तो और भी थक जाती हूँ, आईज थक जाती हैं. जब तक बॉडी थकेगी नहीं ना, यू विल नॉट रियलाइज. बॉडी थक गई, नो टाइम फॉर थिंकिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा और समथिंग. सो मेक एंड प्रायोरिटाइज योरसेल्फ इन लाइफ. मेक अ टाइम टेबल. मेरा एक फिक्स टाइम टेबल है. बिफोर दिस आई वेक अप एट 9 AM और सारा दिन आई एम फ्रस्ट्रेटेड. मैं अपने घर वालों पे भी गुस्सा करती थी, क्या है, क्यों है, चिल्लाती थी बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन. 9 बजे उठ के फ्रस्ट्रेशन ही होती है. कोई ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं, कोई लंच का टाइम नहीं, सब कुछ डिले होता था. बट नाउ 8:30 एंड मैक्स 8:15 एंड 8 के बीच में आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट. आई एम रेडी टू स्टार्ट माई वर्क. सो आई गेस दिस इज द रीजन. सब चीजें कनेक्टेड हैं विद टेम्पल और ये सब स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना बहुत सालों से. दिस इज इमेंस पावर. So if you have any kind of a way that you can follow, like accordingly, so make changes and you'll face the everyday challenge and everyday improvement in you. Okay, so this was my journey, an interesting journey I shared with you. It's 9 months now, and it's amazing and every day awesome. Really, I want to thank everyone, my God, everything. मैं ये मानती हूँ कि this is a blessing in my life, nothing else. Okay, so this is all about my experience. And one more important thing, I forgot to tell you. मैंने जब अपने एसेट्स रिसीव किए थे एंड बायजूस किट रिसीव की थी, that one नोटबुक एंड द डायरी आई रिसीव विद द पेन, मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया उसे. इतनी एक्साइटमेंट में है ना वो अभी भी. आज मैं वो बैग है मेरे पास, लैपटॉप भी यूज कर रही हूँ ऑफकोर्स. बट जो चीजें मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाई हैं, राइट, दिवाली गिफ्ट भी आया, आई वॉज मोर एक्साइटेड कि गिफ्ट आया है. कोरियर वाला बाहर था और मैं भागी गई, ओ मेरी कंपनी से गिफ्ट आया है. सो आई एम किडिश एज वेल इन दिस लेवल एज वेल. सो ये चीजें मुझे बहुत एम्पावर करती हैं. तो मेरे लिए एडमायर करना इन सब चीजों के लिए, इस चीज से प्यार भी है ऑब्वियसली काम से, और जो चीज एप्रिसिएशन मिलती है, रिस्पेक्ट भी है. सो
वैल्यू करना आना चाहिए लाइफ में किसी भी चीज का, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कुछ भी हो लाइफ में। मैं बहुत वैल्यू करती हूँ, बहुत मानती हूँ इस चीज को। वो डायरी जो मुझे मिली थी बैग के साथ और वो पेन बायजूस का, वो अभी तक एज इट इज पड़ा है। मैंने यूज ही नहीं करने का मन करता क्योंकि खराब ना हो जाए, वो खत्म हो जाएगी, एंड लाइक दैट फीलिंग आई हैव। सो इट्स so beautiful, and every day I am having this life every day with a positive attitude and looking forward for more positive improvements in my life. So bye bye, thank you so much for listening this. Thank you.